संयुक्त किसान मोर्चा की इस प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। जैसा कि हर दिन का नियम है, जो सुबह की बैठक के अध्यक्ष होते हैं वो प्रेस वार्ता की अध्यक्षता करते हैं। आज लखोवाल साहब हमारे अध्यक्ष हैं, तो वो आज की शुरुआत करेंगे। विशेष मेहमान के रूप में हमारे पास जुदबीर जी आए हैं, भारतीय किसान यूनियन, सारा देश इनके चेहरे से परिचित है। हमारे साथ बंगाल से हन्नन मौला जी, ऑल इंडिया किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी हैं, वैसे मेंबर पार्लियामेंट भी रह चुके हैं बहुत समय। तेलंगाना से हमारे साथ किरण बिस्सा जी हैं, रैतु स्वराज वेदिका करके वहां किसान संगठन है, उसके प्रतिनिधि के रूप में आए हैं। बाकी साथियों को लखेवाल जी इंट्रोड्यूस करेंगे। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। मैं हरिंदर सिंह लखोवाल, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਥੀ ਆਏ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਰਨ ਬੀਸਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਰਹਿਤਾ ਸਵਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਹਨਨ ਮੌਲਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ, ਹਾਂਜੀ। ਹਨਨ ਮੌਲਾ ਜੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। जुद्धबीर जी बीके जी तो इंडिया के जो जनरल सैकटरी ने वो आए ने। रजिंदर सिंह दीप सिंह वाला किरती किसान यूनियन तो वो आए ने। बलदेव सिंह निहालगढ़, सरजीत सिंह फूल वो भी साडे विच बैठे ने। बूटा सिंह शादीपुर, बाकी सारी संगत खड़ी आ। असीं प्रैस कानफ्रेंस शुरू करन लगे हैं। शुरू कर दईए, इजाजत है जी। अभी डिस्टर्ब हो जाएगा। पंजाब के सभी किसान जथेबंदियों की आज मीटिंग सुबह 10 बजे से 1 बजे तक हुई। उसके बाद इंडिया के जो किसान ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ मीटिंग हम अभी ख़त्म करके आ रहे हैं, जिसमें सर्वसम्मति से फैसले कुछ किए गए, वो भी हम बताएंगे। पहले हम आपको बता दें, कल जो हमारी मीटिंग हुई है सरकार के साथ, कल हमने सरकार को साफ कह दिया भी जो 3 कानून हैं उनको वापस ले। पर सरकार कुछ अमेंडमेंट करनियां चाहती सी, पर वो सानू प्रवान नहीं हुई। पहला तो सरकार सानू यही कही गई है भी साडे कानून बहुत वधिया ने, बहुत देख के बनाए गए ने। पर कल वो मन गई है साडियां दलीलां दे सामने, किसानां दीयां दलीलां दे सामने भी साडे कानूनां दे विच नुक्स ने। ਅਸੀਂ 9 ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ। 9 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਤੇ ਇੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਬਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। उस तो बाद ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ। और 8 तरीक ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 1 ਦਿਨ ਲਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੰਮੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ पूरी सपोर्ट सारे सूबे तो आ रही आ। सारे जिमें 2 ही रास्ते जोड़े ने यूपी के भी बंद हो चुके हैं, उपरला पुल भी बंद करता, अज थल्ले वाला पुल भी बंद कर दिता। आने वाले दिनों असी जी दिल्ली की पूर्ण तौर पर जी नाकाबंदी आ, जड़ियाँ 2 सड़क बचदियां ने, असी तैयारी कर ली 8 तरीक तक, वो भी पूरी कोशिश करांगे तो वो पूरे तौर पर जोड़े ने नाके बंद कर दिते जाएंगे। अज साडे नाल सारे भारत के किसान आ गए ने।
ਕਿਥੇ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਆ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਇਹਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਝੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਜੋ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਵੀਰ ਕਿਸਾਨ ਘਰੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ, ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਕੱਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਊਗਾ? 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋਗਾ, ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਬੰਦ ਹੋਗਾ, ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋਗਾ। ਹੁਣ ਜੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। अभी हरिंदर लाखोवाल जी ने आपको बताया कि किसान मन बना चुका है आर पार की लड़ाई लड़ने की। पूरे देश में आज किसान बेचैन है, दिल्ली आना चाहता। ये जो कोविड की वजह से जो हालात हैं, जो ट्रेनें नहीं चल रही हैं और जो ट्रांसपोर्ट उपलब्ध नहीं है, उसकी वजह से अब तक धैर्य किए हुए किसान बैठा था, लेकिन किसान का धैर्य चूक गया। किसान पैदल आने के लिए भी तैयार। आज तमिलनाडु में हमारा प्रदर्शन था, हमारा कर्नाटक में निरंतर हर पंचायत स्तर पे प्रदर्शन चल रहा। हमने अपने तमाम स्टेटों के किसानों को, नेताओं को ये कह दिया कि वो दिल्ली पहुंच जाएं और जो संगठन है वो तैयारी कर ले, क्योंकि जैसा सरकार का रवैया है उसको देखते हुए शायद सरकार हमारी और परीक्षा लेने चाहती है। सरकार को गफलत और गलतफहमी है, सरकार को समझ लेना चाहिए ये कोविड तो छोटी बीमारी थी, ये जिसको हाथ उन्होंने लगा दिया ये कोविड का बाप। ये देश का किसान आज एक सुर में खड़ा, आज किसान अपने भाई के साथ कंधे से, एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा। और इस यज्ञ में जो किसान पिछड़ जाएगा उसकी पीढ़ियां उसको माफ नहीं करेंगी कि एक बड़ा यज्ञ किसानों ने दिल्ली में शुरू किया था। आप कहां थे उस समय? जवाब नहीं दे पाएंगे अपने बच्चों को। तो ये मैं जो मेरे किसान भाई घर बैठे हैं, जो सो रहे हैं, जो गफलत में, वो तैयारी करें और इस दिल्ली के यज्ञ में आके अपनी आहुति दे। लड़ाई आर पार की होगी, पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आनंद मौला जी। साथी जी, जैसा आपको बताया गया है, आज को जो मीटिंग हुआ, ये मीटिंग ऐतिहासिक मीटिंग, पंजाब के संगठन मीट करने के बाद पंजाब के साथियों के साथ, हरियाणा के साथियों के साथ पूरा देश के सारे किसान संगठन के नेताओं ने मिला। अखिल भारतीय स्तर का जो संगठन है उसका नेताओं ने मिला। इसके साथ साथ केरला, कर्नाटक, आंध्र, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, सारे राज्य, बंगाल, सारे राज्यों का किसान नेताओं ने आज शामिल हुआ। ऑल इंडिया स्ट्रगल है, क्योंकि हमारा एक कोशिश चल रहा था, सरकार का साजिश है इसको सिर्फ सीमित रखने के लिए पंजाब आंदोलन बोल के, मगर आज दिखाया ये आंदोलन पूरा भारत में हो रहा है। अरे भारत में होगा, जैसा 26 जनवरी पूरा भारत में ग्रामीण बंद हुआ था, सिर्फ एक जगह में नहीं है। तो आज तय हुआ ये आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे। सरकार का चरित्र आज साफ हो गया। काल सरकार कोई अमेंडमेंट रखेंगे तो हम लोग तय किया एक साथ मिलके कोई अमेंडमेंट हम स्वीकार नहीं करेंगे, संशोधन, क्योंकि ये कानून सर से पैर तक ये सड़ा हुआ है। थोड़ा सा रिपेयर करके इसको भलाई नहीं हो सकता। ये सबसे ज्यादा जन विरोधी है, इसका पल पल जन विरोधी है, इसलिए इसको कोई संशोधन नहीं चलेगा, इसको संपूर्ण रूप से वापस लेना पड़ेगा। ये होगा काल हमारा मीटिंग में, हम सब एक साथ ये मांग को सरकारी मीटिंग में रखेंगे। उसके साथ ये बात सरकार माने रिपील करने के लिए
रिपील करने के स्वीकार करे। ये सरकार कानून तभी दूसरे बात भी हमारा एजेंडा बताया और भी मांगे हैं, मगर पहले ये शर्त है ये 3 कानून वापस लेना। ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल ये हमारा मांग है। बहुत खुशी का बात है, सारे किसान संगठन सब एक साथ एक सुर में इसमें सहमत है। तो इसलिए ये आंदोलन हम जारी रखेंगे। नया नया संगठन रोज जोड़ रहा है, आज भी देखा, आज भी नया संगठन बहुत सारे जोड़ा है जिसको नाम आपके सामने आया है। इसलिए इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है और इस आंदोलन को आज जैसा हो रहा है महाराष्ट्र में जगह जगह पे काल परसों वो सब घेराबंदी होगा। कर्नाटक में बेंगलोर में असेंबली के सामने 1 हफ्ता लगातार धरना होगा। बंगाल में आज काल परसों लगातार चल रहा है और काल पूरा बंगाल में रास्ता रोको होगा। बिहार में ये आंदोलन होगा, असम में ये आंदोलन होगा, उड़ीसा में भी ये आंदोलन का उड़ीसा नेता बताया, पूरा उड़ीसा में ये आंदोलन होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब ये तो लड़ाई है ही, पूरे हिंदुस्तान ये लड़ाई में रहेंगे। और सरकार तो झुकना शुरू किया है, मगर उसको ये इतना में हम खुश नहीं है। पहले बोला था आने नहीं देंगे, आने देना पड़ा। उसके बाद बोला तुमको बुरारी जाना पड़ेगा, हम नहीं गया, उसको मानना पड़ा। तीसरा बार बोला क्या बात करेंगे कंडीशन के साथ, नहीं माना तो बोला ठीक है बिना कंडीशन। तीसरे बार झोंका। चौथा बार चर्चा हुआ, आके हमारा बात नहीं सुनना चाहता था, पूरा बात सुना। उसके बाद 5वीं बात बोला कि हम संशोधन करेंगे, ये भी झुका है। पहले बात करने के लिए तैयार नहीं था और आज कम से कम कानून में 10-12 जगह में खामियां है। कल स्वीकार किया कि आप जो बोला ये कानून में 10-12 जगह में खामियां है, हम इसको विचार करके संशोधन करेंगे। मगर ये यहाँ झुका है, मगर इतना झुकने से भी हिंदुस्तान के किसान खुश नहीं है। सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ेगा। किसान के साथ जो गद्दारी करने का भूमिका किया है ये बंद करना पड़ेगा। यही है आज का मीटिंग का फैसला। धन्यवाद। किरण बीसा जी तेलंगाना तो। सभी को नमस्कार। मैं तेलंगाना के किसान संगठन से हूं। मैं ये बताना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में काम करते हैं और मैं ये कहना चाहता हूं, किसान संगठन का नाम है रैतु स्वराज वेदिका। और ये जो सरकार की ये कोशिश है कि इस लड़ाई को सीमित रखे, इसको हम पूरा नकारते हैं, क्योंकि फैक्ट तो ये है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी इन तीनों कानूनों के खिलाफ जो लड़ाई है वो अगस्त 9 से शुरू हुई थी। जो क्विट इंडिया डे था उसी दिन हम कॉर्पोरेट क्विट इंडिया ये कानून को वापस लो करके पूरे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हमने प्रदर्शन किए हैं और उस दिन से लेके लगातार इन कानूनों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं वहां पे। लेकिन हम समझते हैं ये बीजेपी सरकार का जो कैरेक्टर है, चरित्र है, कि अगर आप उसका गर्दन नहीं पकड़े तो वो नहीं सुनते। तो पंजाब और हरियाणा के किसान आज वही करके दिखाए और उत्तर प्रदेश के किसान भी आ रहे हैं, राजस्थान के किसान भी आ रहे हैं। जैसे दिल्ली सरकार के गर्दन पकड़ के बैठे हैं, इसलिए वो बातचीत करने के लिए आए हैं। लेकिन हम ये भी क्लियर हैं कि सिर्फ बातचीत करके छोटे छोटे अमेंडमेंट्स इस बिल में लाने का, इस एक्ट में लाने का, वो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। इन एक्ट को पूरी तरह से रिपील करना पड़ेगा। वही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के किसानों का भी डिमांड है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो लड़ाई हो रही है, इसकी स्फूर्ति जो है, इसका इंस्पिरेशन जो है, हर एक किसान देश भर में ले रहे हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कई सारे जगह पे, कई सारे जिलों में धरना स्थल खुले हैं जहां अनिश्चितकाल धरना हो रहा है। जैसे यहाँ के किसान, पंजाब के किसान यहाँ पे बॉर्डर पे बैठे हैं, इसी तरह वहाँ पे ये धरना स्थल खुले हैं जहाँ पे किसान रोज बैठ रहे हैं। कई सारे जगह पे अनशन भी वो डिक्लेयर कर चुके हैं। ऐसा ही लड़ाई चल रहा है। कल जो मोदी सरकार और कॉर्पोरेट घरानों के पुतले जलाने का कार्यक्रम होगा वो भी दोनों राज्यों में होगा और दिसंबर 8 का भारत बंद जो है वो भी होगा। और हम ये भी ये कोशिश कर रहे हैं कि शहर के लोग जो होते हैं, जो किसान नहीं है लेकिन पूरी एक सिंपैथी के साथ इस स्ट्रगल में को देख रहे हैं,
उनको भी इस स्ट्रगल में शामिल करने का बहुत सारे कार्यक्रम हम प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे साइकिल रैली हर एक शहर में हो सकता है, वो हैदराबाद में प्लान कर रहे हैं। और अंत में ये बात मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ जो लड़ाई चल रही है वो पूरी देश की लड़ाई है। तो ये सरकार इसको जो डिवाइड एंड रूल का जो रवैया अपनाना चाहती है उसको हम पूरी तरह से डिफीट करेंगे। शुक्रिया। राजेंद्र सिंह जी राजू, दीप सिंह वाला तो एक मिनट ली। राजू ने रजिंदर सिंह दीप सिंह वाला तो एक गल हैगी आ कि मैं हिंदी में बोलूं।